قانون کی پاسداری کی ہے. میں نے آج وہ قرض اتار دیا جو مجھ پہ واجب بھی نہیں. نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو انشاءاللہ اس کی طاقت پائیں گے. وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش. 2 گھنٹے کی پیشی کے بعد کہا کہ نواز شریف کی بیٹی کو ان کی کمزوری سمجھنے والے نواز شریف کی بیٹی کو ان کی طاقت پائیں گے. مجھے ڈان لیکس میں بھی ملوث کیا گیا. سازشیں کرنے والوں کا مقصد بیٹی کا نام استعمال کر کے باپ کو پریشر میں لانا ہے. یہ جے آئی ٹی الزام ڈھونڈ رہی ہے. 1 پیسے کی بھی کرپشن ہے تو سامنے لائیں. ذاتی کاروبار پر نہ سوال بنتا ہے نہ جواب دینا بنتا ہے. وزیر اعظم کی بیٹی کے طور پر پیش ہو کر وہ قرض بھی اتار دیا جو مجھ پر واجب بھی نہیں تھا. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے, جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. باپ کو بیٹی کا نام استعمال کرتے انڈر پریشر نہ کہ عوام اس کی طاقت ہے. آئین اور قانون اور سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہے, کھڑا رہے گا تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا. مریم نواز نے سازشیں کرنے والوں کو وارننگ دے دی. کہا باز آ جاؤ, نواز شریف کو سازشیں بے نقاب کرنے پر مجبور نہ کرو. نواز شریف سویلین بالادستی کے لیے غیر آئینی اقدامات کے خلاف دیوار بن کر کھڑے رہیں گے. اس دن سے خوف کھاؤ جب وہ بے رحم احتساب کے تمغے سجا کر 2018 میں عوام کے پاس جائیں گے. اگلے وزیر اعظم بھی وہی بنیں گے. روک سکو تو روک لو, ورنہ نواز شریف کو, ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو, ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. روک لو نواز شریف کو, ورنہ سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے. روک لو نواز شریف کو, ورنہ وہ 2018 کا الیکشن جیت جائے گا. میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف پہنچاؤں گا, ان کو رلاؤں گا. میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا, کسی انسان کی وہ حیثیت نہیں ہے, کسی انسان کی وہ اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو یا جھکائے یا رلائے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم کو رلائے گا تو وہ جان لے کہ یہ کسی انسان کی اوقات یا حیثیت نہیں کہ وہ کسی کو جھکائے یا رلائے. بیٹی کی قدر وہ نہیں سمجھ سکتے جنہیں اپنی بیٹی کی قدر نہیں. ہم عدلیہ سے محروم ہو کر نتیا گلی میں نہیں چھپے. مریم نواز عمران خان پر پھٹ پڑی. وہ پورا بلڈ اپ ہوا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے جا رہی ہے. اور وہ 2.5 لاکھ پولیس ایک پرائم منسٹر کی بیٹی عام شہری ہے, وہ اس طرح جا رہا ہے جس طرح ہاتھ رہا ہے, پولیس سلوٹ کر رہی ہے اس کو. وہ ہے کون؟ وہ آپ نے آج کوئی مثال دیں گے بادشاہ کی, تو شہزادی مریم کو جاتے دیکھنا تھا آج آپ نے جے آئی ٹی کے سامنے. عمران خان کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مریم کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے نہیں, فائرنگ اسکواڈ کے سامنے پیش آ رہی ہوں. کسی کو بادشاہ کی مثال دیکھنی ہے تو مریم نواز کی جے آئی ٹی میں پیشی دیکھ لیں. وزیر اعظم کی بیٹی عام شہری ہے, اسے پولیس نے سلیوٹ کیا. ایسا ڈرامہ کیا جا رہا ہے جیسے کسی بادشاہ کی شہزادی کو پیش کر کے بڑا ظلم کیا گیا ہے. مریم نواز کے ساتھ گھر والوں کی پرائیویٹ گاڑیاں آئیں. عمران خان آج بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے. مریم نواز کسی سرکاری پروٹوکول میں نہیں آئی. مریم اورنگزیب کی وضاحت. ساتھ ہی سوال کیا کہ عمران خان کس حیثیت سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سانپ سیڑھی کھیلتے ہیں, کے پی کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں.
JIT में मरियम नवाज की पेशी के मौके पर गैर मामूली सिक्योरिटी, दारुल हुकूमत और जुडिशल अकेडमी के गिर्द जगह जगह रास्ते बंद, ट्रैफिक ब्लॉक, शहरियों को मुश्किलात का सामना, अस्पताल जाने वाले मरीज भी फंस गए, गाड़ियों की लंबे कतारें लग गईं। PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की बातों को मज़ाक़ खेज करार दे दिया। कहा सारे तमाशे में मरियम नवाज फ्रंट वुमन है। मरियम नवाज की JIT में पेशी की वजह PTI नहीं हुसैन नवाज है, जिन्होंने उन्हें ट्रस्टी बताया। क्या अपनी बेटियों के नाम पर चोरी का पैसा रखना सही है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि आज हमारी बेटी को बुलाकर जुल्म की इंतहा कर दी गई। तलाल चौधरी का कहना था कि JIT भी जवाबदेह है। JIT सुप्रीम कोर्ट और अवाम को जवाबदेह है। व्हाट्सएप कॉल, तस्वीर लीकेज और वजीर आजम हाउस की सर्विलेंस का जवाब कब मिलेगा? बिजनेस क्लास में सफर करने वाले JIT के अरकान भी अपने खातों का हिसाब रखें। कौम उनसे भी एक एक पैसे का हिसाब लेगी। वजीर आजम के मामले खसूसी आसिफ करमानी ने JIT को खबरदार कर दिया। PTI के शफकत महमूद कहते हैं कि हुकूमती अरकान JIT अरकान को धमकियां दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आसिफ करमानी के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पनामा केस JIT का फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ आएगा। गैलप सर्वे में 51% आवाम की राय, 48% ने कहा JIT वज़ीर आज़म और अहलखाना को मुजरिम करार नहीं देगी। 56% ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीकेज को JIT की नाकामी कहा। 43% कहते हैं ये JIT की नाकामी नहीं। इख्तियारात मुंतकिल ना करते तो आज मियां साहब वजीर आजम नहीं होते। आसिफ जरदारी का दादू में खिताब, कहा लैपटॉप देकर इलेक्शन जीत भी जाए तो मतलब ये नहीं कि पीपल्स पार्टी नहीं, बिलावल पार्टी को उठाएगा। इंतखाबात में बल्ले को कोई फायदा नहीं होगा। चेयरमैन नैब भी पनामा JIT के सामने पेश। कमरुज़्ज़मान चौधरी से 7 घंटे तक पूछताछ। चेयरमैन नैब ने हुदैबिया केस से मुतालिक नैब के फैसले की नकल और दीगर दस्तावेज़ात जमा कराए। पनामा लीग्स की JIT के दुबई जाने वाले 2 अरकान वापस आ गए। इरफान मंगी और ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद मंगल की सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे। टीम को मौसूल गल्फ स्टील, हुदैबिया पेपर मिल्स और फ्लैगशिप कंपनी की दस्तावेजात की तस्दीक के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात की। हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत 11 जुलाई को होगी। समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुक्मरान कहे कि जमहूरियत को खतरा है। कोई डोरियां हिला रहा है तो जनाब वजीर आजम आओ। आप कहते हैं कोई डोरियां हिला रहा है, ये तो पनामा केस से ज्यादा बड़ी खतरनाक बात है। पनामा तो कुछ भी नहीं है जब मेरी जमहूरियत को खतरा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तासिफ सदर से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। बदकिस्मती से भारत ने हमारी कोशिशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले नसर मिसाइल का कामयाब तजर्बा। आर्मी चीफ ने कहा कि मिसाइल की लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नसर मिसाइल ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को ठंडा कर दिया। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुकासमत बढ़ाते हुए हमसाया मुल्क के खिलाफ अमन की जमानत है। हम मुज़ाकरात के जरिए अमन की हुकूमती कोशिशों के पूरे दिल से हिमायत करते हैं। कौमी असम्बली के इंतजाम कवानीन से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी ने सिंध हुकूमत का इंसदाद बददुआनी बिल 2017 गैर आईनी करार दे दिया।
कमेटी की सिंध हुकूमत से नैब ऑर्डिनेंस गैर मौसर करने का बिल वापस लेकर नसर सानी की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद करके बारीक काम किया। सिंध हुकूमत सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। PS 114 में पुलिस वोटर्स को धमका रही है। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का इल्जाम। लालच ने खून सफेद कर दिया। पुलिस के मुताबिक कराची में जायदाद पर कब्जे के लिए बेटे और बाप ने मिलकर दादा को छत से धक्का देकर कत्ल कर दिया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। रुकन बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अटकजई का 25 साल पुराना केस भी खुल गया। 1992 के मुकदमा कत्ल में 2 रोज का रिमांड दे दिया गया। गाड़ी की टक्कर से ट्रैफिक सर्जन की जान लेने के केस में पहले ही रिमांड पर। आज चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबाल किया। 5 जुलाई 1977 को जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का यौम इफ्तिताह। मुख्तलिफ शहरों में तकरीब और मुजाहिरे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 40 साल पहले एक आमिर ने कौम की उम्मीदों को रौंद डाला था। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, क्लाशनकोव और ड्रग्स कल्चर आमरीत का तोहफा। भारतीय वज़ीर आज़म की इसराइली हम मनसब से मुलाकात। भारत और इसराइल के दरमियान स्पेस टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट कोऑपरेशन और ज़राअत की शोबाजात समेत 7 मुआहिदों पर दस्तखत। मोदी का कहना है कि भारत की तरह इसराइल को भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का सामना है। नेतन्याहू कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। नाम निहाद महान भारत में जान बचाने के लिए मुसलमान मर्द बुर्का ओढ़ने पर मजबूर। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मामूली बात पर झगड़े और कत्ल की धमकी के बाद मुसलमान मुसाफिर ने बुर्का पहन लिया। दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने समेत 13 मुतालिबात पर कतर का जवाब सऊदी इत्तेहाद को मौसूल। मिस्र, सऊदीया, इमारात और बहरीन कतरी जवाब पर आज लाहे अमल तैयार करेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुतालिबात की फहरिस्त गैर हकीकी और नाकाबिले अमल है। चीन और रूस में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का वुसअत देने का समझौता तय। मॉस्को में चीनी और रूसी सदूर के दस्तखत के बाद एलामिया जारी। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मसालती किरदार पर चीन की तारीफ। खबरदार, मच्छर के काटने से फैलने वाले मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया समेत मुख्तलिफ अमराज लाखों इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। होश उड़ा देने वाली दस्तावेजी फिल्म में बिल गेट्स ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर को वार्निंग दे दी। अमरीकी डॉलर की उड़ान ऊपर और ऊपर। डॉलर 3 रुपए 32 पैसे महंगा हो गया। आज इंटरबैंक में $1 108 रुपए से ऊपर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर का कारोबार ही नहीं हो सका। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम पर मुसलसल चौथी शिकस्त के साए ऑस्ट्रेलिया ने 291 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान की 7 विकेट 97 रन पर गिर गई। आखिरी लम्हा का खेल जारी। इत्तेहाद एयरलाइंस के बाद एमिरेट्स एयरलाइंस पर आयद पाबंदी भी खत्म। अमेरिका ने अमाराती परवाजों में लैपटॉप ले जाने पर पाबंदी फौरी तौर पर उठा दी। में यौम आजादी पर रंगारंग तकरीबात। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में शानदार आतिशबाजी।
में 12 साल के बच्चे ने सड़कों पर बस दौड़ा दी। हैरत ज़दा शहरियों ने पुलिस को इतला दी तो पकड़ा जाए। ऑस्ट्रिया में मुर्गियों से भरा ट्रक सड़क पर उलट गया। रेस्क्यू एहलकारों की दौड़े लग गई। मुर्गियां सिडनी का नाच रचाती रहीं। हाईवे पर हजारों गाड़ियां रास्ता खुलने का इंतजार करती रहीं। हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे मजाक कली उड़ मटक कली। और फैशन क्वीन सोनम कपूर की पेरिस फैशन वीक में दीदा जेब लिबास की दिल फरेब नुमाइश।